So hi everyone, welcome back to this another video. So in this video we are going to talk about right to equality, which covers article number 14 to article number 18. Now when we are talking about this right, it's important to first of all understand कि इसके पहले हमने क्या देखा था एक बारी just to check in and have a revision. इसके पहले वाली वीडियो में we have seen the definition of state and we have also seen what all comprises or what all falls into law from the constitution's perspective. Now we are going to understand the right to equality in detail. One by one we will cover all the rights and we will look into the meaning of it, the philosophy of it, and we will try to make it more simple in understanding so that वो दिमाग में ज़्यादा दही ना हो and बहुत clear and direct understanding आपके मन में एक बनी रहे. So Article 14 talks about equality before law. Now जब हम लोग equality before law की बात कर रहे हैं Article 14, here 2 to 3 things have to be kept in mind. But simply अगर हम लोग इसकी अंडरस्टैंडिंग देखें at the basic level, एकदम ही देसी वर्जन में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ and equal protection of law. When we are talking about what does the article say, it says that the state shall not deny to any person equality before law or the equal protection of law within the territory of the India. जब हम लोग equality before law की बात कर रहे हैं and the second term is equal protection of law, right? Equality before law is ब्रिटिश इन ओरिजिन, तो इसको याद करने का सिंपल तरीका यहाँ पे बी आता है, सो इट इज ब्रिटिश. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज अमेरिकन इन ओरिजिन. वन मोर थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट मोटा मोटा इट फील्स लाइक दोनों लगभग सिमिलर ही है, बट इक्वालिटी बिफोर लॉ सिंपली सेज दैट एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ. हर एक इंसान, चाहे वो राजा हो चाहे वो फकीर हो, एवरीवन इज सब्जेक्टेड इक्वली इन फ्रंट ऑफ द लॉ. किसी को भी हम लोग कम या ज़्यादा नहीं आंकेंगे, सब समान है कानून के सामने. सो दैट इज व्हाट इक्वालिटी बिफोर लॉ टॉक्स अबाउट. कोई भी प्रिविलेज काम नहीं आएगा इक्वालिटी बिफोर लॉ के केस में. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बेसिकली सेज दैट सभी के अधिकार को हम लोग इक्वली प्रोटेक्ट करेंगे एंड एवरीवन शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लॉ. कोई भी आर्बिट्रेरीनेस नहीं होनी चाहिए गवर्नेंस में. एंड देयर कम्स वन मोर इम्पॉर्टेंट philosophical thing which is important to understand, which is rule of law given by A.V. Dicey. So I am taking things a little more on a shorter या फिर एक better understanding के लिए मैं आपको बता रही हूँ. If you have to dive more deeper into it, you can refer to लक्ष्मीकांत, क्योंकि उसमें काफ़ी डिटेल में है. But it's important to have a broader understanding and then go to the book which provides more उसके अंदर के points but more often वो एक ही चीज़ कह रहे होते हैं. So that's why I taught it on a broader level. Rule of law basically it also corresponds to the above philosophy की कोई भी आर्बिट्रेरीनेस नहीं होनी चाहिए, सभी के लॉज को इक्वली प्रोटेक्ट करना है. एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो रूल ऑफ लॉ में लास्ट में था पॉइंट, दैट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट as a source. Constitution basically act as a source of all the individual rights. So मेरे जितने भी अधिकार हैं, let's say I have the right to speak, I have the right to travel around anywhere in the country, so whatsoever rights that I have, Constitution act as a source of it. Constitution में वो mentioned है, Constitution basically उसको justify करता है of all the individual rights. ये इन्होंने बोला था अपनी थर्ड फिलॉसफी में A.V. डाइसी के. बट इंडिया में सिचुएशन इज अ लिटिल मोर डिफरेंट. इंडियन फिलॉसफी सेज दैट इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है इसलिए इंडिविजुअल राइट्स है. दैट इज व्हाट इट सेज.
इन इंडियन फिलोसफी की इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्ट एज अ सोर्स या कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंडरी चीज नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्राइमरी थिंग which leads to the rights of individuals and further a lot other things. So that is one thing which I पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि थोड़ा important है जानना, to know the difference. Because common story तो पता होती है, but to look forward with the different points is somewhere we miss out. So that is what I tried to cover here. And moving forward, तो आर्टिकल 14 तो हो गया कि इक्वालिटी बिफोर लॉ है. बहुत सारे टीवी के एड्स में भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, एवरीवन इज इक्वल. सो देयर इज वन पर्टिकुलर एड विच आई रिमेंबर, टाटा टी का, जिसमें वो एमएलए या कोई तो होता है जो आके कहता है तुम जानते नहीं हो हम कौन है. सो द पर्सन, द गर्ल ऑन द डेस्क सेड दैट यात्री कृपया ध्यान दें, ये महाशय नहीं जानते हैं कि ये कौन है. सो दैट बेसिकली टॉक्स अबाउट दैट एवरीवन इज इक्वल, whether you are someone who is very much on the top or someone like common people like us. But here in constitution itself, in further articles, but उनका reference देना जरूरी है because we would be covering it later. There are exceptions to equality. So yes people, there are exceptions to equality which is commonly known as what? Privileges. So this is what it is in Indian democracy. पढ़ते पढ़ते कभी कभी मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन खुद को ही बहुत बारी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, बट इट इज व्हाट इट इज एंड देयर इज अ फिलोसफी फॉर एवरीथिंग टू जस्टिफाई इट, बट स्टिल इट एग्जिस्ट. सो व्हाट ऑल आर द प्रिविलेजेस और द थिंग्स व्हिच आर अवेलेबल? पहला तो जो भी प्रिविलेजेस गवर्नर को दिए गए हैं, जब भी हम लोग गवर्नर की बात करेंगे वी विल कवर द प्रेसिडेंट, क्योंकि दोनों के प्रिविलेजेस सेम है, आर्टिकल नंबर डिफरेंट है बट स्टोरी सेम की गवर्नर और प्रेसिडेंट को हम लोग इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर नहीं दे सकते टिल द टाइम दे आर इन ऑफिस. आर्टिकल 361A बेसिकली टॉक्स अबाउट इट. एंड फर्दर उनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती टिल द टाइम दे आर इन ऑफिस. Any civil proceeding cannot be instituted against them before giving them 2 months of notice. We are going to talk about these articles further. So बस एक ऊपर से understanding ले लेते हैं क्योंकि अभी हम लोग इसको वापस पढ़ेंगे ही, तो यहाँ पे जबरदस्ती का space cover करने से अच्छा है just have a broader understanding of things. हाँ, equality के exceptions भी हैं which we have to keep in mind कि equality के exceptions में एक तो गवर्नर वाला बता दिया. Then there is this article 105 जो कि जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते हम लोग फॉर वॉट एवर दे हैव सेड इन द पार्लियामेंट. सो आप पार्लियामेंट में कुछ भी बोले उसके अगेंस्ट में हम कोर्ट में जाके कभी नहीं कह सकते कि आपने पार्लियामेंट में ये बोला था, एंड since that was derogatory of the women, derogatory to, because parliament में बहुत सारे लोग कुछ कुछ ऐसी चीजें बोलते हैं which sounds little more derogatory or objectifying, but we can't do anything in general of that because article 105 comes and protect them. And there are further a lot other articles, a few articles, but we will talk about it later. And similarly फिर ये जो parliament के लिए है that the same thing happens for state legislatures. तो article number बदल जाएगा but the story is same. So कोई भी criminal proceeding है वो हम लोग उनके against में institute नहीं कर सकते, and that is what we call as privileges, जिसके ऊपर बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ने भी वाले हैं. एंड लक्ष्मीकांत में अगेन फिर से इसके ऊपर बहुत डिटेल में है, बट सिंस वी आर कवरिंग द बेयर एक्ट इसको जानना ज़रूरी था और एक्सेप्शंस जानना ज़रूरी थे, अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी थी. इफ़ you need, you can go and find some articles if there are any articles with regard to the exceptions to equality. So try to find them on any news website and just read it out because that is what is required. मेंस में तो खैर पढ़ना ही पड़ेगा डिटेल में, बट प्रिलिमिनरी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से या अभी के पर्सपेक्टिव से आई थिंक दिस मच इज इनफ. सो दैट इज व्हाट इट इज. एंड या नाउ कमिंग टू आर्टिकल 15. आर्टिकल 15 में जब हम लोग बात कर रहे हैं, आर्टिकल 15 सिंपली क्या बोलता है? आर्टिकल 15 कहता है कि हम लोग किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन टॉलरेट नहीं करेंगे. हम लोग discrimination is prohibited at all.
अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है ध्यान में रखने वाली कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में ना बेसिस डिस्क्राइब करके रखा हुआ कि कौन कौन से ग्राउंड्स पे हम डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट कर रहे हैं. इन ग्राउंड्स के अलावा किसी और अदर बेसिस पे अगर यू आर गेटिंग डिस्क्रिमिनेटेड दैट वुड नॉट बी कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिटेड. तो ये भी ध्यान में रखना कि बस इन्हीं 5 बेसिस पे हम लोग डिस्क्रिमिनेशन या फिर जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट ऑल आर दी 5 बेसिस on which the state would not be discriminating. So here it says that the state shall not discriminate against any citizen on grounds. So here is the most important terminology, only. So only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. So religion, race, caste, sex, place of birth. अगर इन 5 में से कोई भी एक क्राइटेरिया पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर रही है ओनली देन यू नो वो प्रोहिबिटेड या कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिटेड कैटेगरी में आएगा. सो दैट इज व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड कि रेस के बेसिस पे, आपके कलर के बेसिस पे, आपकी जाति के बेसिस पे, आपके धर्म के बेसिस पे, आपके सेक्स के बेसिस पे, आप कहाँ पैदा हुए हैं उसके बेसिस पे. कल को अगर मैं इनके बियॉन्ड जाके मैं किसी और बेसिस पे अगर डिस्क्रिमिनेशन करना चाहूँ, सो आई कैन डिस्क्रिमिनेट ऑन दैट बेसिस. मे बी आई कैन डिस्क्रिमिनेट यू ऑन द बेसिस ऑफ योर एज कि इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए या फिर कुछ ऐसा एज लिमिट डाल दूँ जिसमें आधी से ज़्यादा यूथ ही एक्सक्लूड हो जाए. सो दैट इज अनदर काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विच कॉन्स्टिट्यूशन इन शॉर्ट allows, because prohibited में सिर्फ ये 5 categories है. So I hope you got the essence of what I was trying to tell. So this was about clause 1. Clause 2 talks about no citizen shall on grounds only of religion, race, place of birth be subject to any disability, restriction or condition. इसमें सिंपली बोला है कि ये जो भी बेसिस है रिलीजन, इन सब के बेसिस पे हम कभी भी किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते. क्या तो उनको दुकान पे या फिर किसी भी पब्लिक एंटरटेनमेंट, होटल्स, इन सब में से जाने से हम लोग रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते. पब्लिक वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स, प्लेसेस, पब्लिक रिजॉर्ट या फिर होली या कोई भी ऐसी चीज़ जो स्टेट फंड से मेंटेन हो रही है जनरल पब्लिक के यूज़ के लिए, उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हम लोग इन बेसिस पे. सो दिस इज व्हाट आर्टिकल 15(2) इज टॉकिंग. 15(3) इज टॉकिंग अबाउट nothing in this article shall prevent the state from making special provision for women and children. Now ये हमारी हो गई women, ये हो गए हमारे children. Now there are somewhere some things की equality तो ठीक है, but कहीं ना कहीं हर कोई इक्वल नहीं है and everyone needs special treatment, everyone needs different kind of treatment to uplift them. So to do with the unjust, स्टेट क्या कर सकता है? स्टेट वुमेन्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है. और आर्टिकल 15 का मतलब कहीं पे भी ये नहीं है कि स्टेट ऐसा नहीं कर सकता. इट मीन्स दैट स्टेट इज अलाउड टू डू और मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर दीज पीपल. So nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for women and children. I hope you get the essence of it. 13(4) talks about यहाँ पे रेफरेंस है आर्टिकल 29 का. तो अगर एक बार आर्टिकल 29 हम देखना चाहें, सो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल. मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा था पढ़ते हुए. बट आर्टिकल 29 ये रहा, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज. सो आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट की बात करता है, जहाँ पे बोलता है कि any section of citizen residing in territory of India or any part thereof have distinct language, script or culture shall have the right to conserve the same. अगर कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्शन है, लेट्स से दिस इज पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल इन मणिपुर, ठीक. अब इनका अलग लैंग्वेज है, मणिपुरी इनकी अलग भाषा है, इनके अलग अलग स्क्रिप्ट्स होंगे, इनका अलग कल्चर होगा, इनका अलग डांस फॉर्म होगा, इनकी सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट होंगी फ्रॉम द ऑर्डिनरी थिंग्स या बहुत जो जनरलाइज्ड फॉर्म है ओवरऑल इंडियन सोसाइटी का. सो दिस आर्टिकल इज सेइंग कि
have the right, these people have the right to basically conserve, their distinct identity in nutshell. So that is what it is talking about. 29 का दूसरा पार्ट कह रहा है कि no citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by state or receiving aid out of state funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them. In short इसमें कह रहा है कि एजुकेशन जो है, किसी भी बच्चे का एजुकेशन हम लोग इस बेसिस पे नहीं डिनाई कर सकते कि जस्ट मिनट आई थिंक हाँ, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय द स्टेट. अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो स्टेट मेंटेन कर रहा है, आई एम सॉरी पीपल, अभी मेरा होल्ड नहीं बैठा है इस टैब पे, पेन टैब पे, या फिर पार्शियली उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को हम लोग फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं. अगर इन दोनों में से कोई भी केस है तो हम लोग डिस्टिंग्विश या फिर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, या फिर ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भी बच्चे को एडमिशन चाहिए तो हम लोग उसको एडमिशन डिनाई कर दें. सो दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट कि ये तो पर्टिकुलरली सिर्फ माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन है, और सिंस यू आर नॉट फॉलिंग अंडर द माइनॉरिटी कैटेगरी तो हमने आपको एडमिशन डिनाई कर दिया. और इसके ऊपर बहुत फेमस केस भी था प्रमति एजुकेशन ट्रस्ट का, which was a case IAS of 2023 जो पिछले साल काफ़ी एक्सटेंसिवली इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था. सो आई रिमेंबर दिस, which was talking about the same, and सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया उसके ऊपर था. तो यहाँ पे बेसिस ध्यान में रखना ज़रूरी है कि यहाँ पे बेसिस है कि रिलीजन के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, इन 4 बेसिस पे हम लोग कभी भी डिस्क्रिमिनेट करके प्रोहिबिट नहीं कर सकते या एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते किसी भी बच्चे का. सो दिस वाज आर्टिकल 29. अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल 15 पे, जहाँ पे हम लोग आर्टिकल 29 का रेफरेंस पाए थे. आई विल ट्राई टू मैच थिंग्स इंस्टेंटली जहाँ पे भी किसी और आर्टिकल का रेफरेंस आएगा, ताकि वो इंटरलिंकिंग वाला होल्ड अभी से बनना शुरू हो जाए. और क्योंकि मैं पढ़ चुकी हूँ, सो आई कैन फाइंड इट ईजियर फॉर यू पीपल, फॉर माई सेल्फ टू एक्सप्लेन इट टू यू पीपल. सो अब हम लोग देखते हैं 15(4). अभी तक हमने 15 में ये सारी चीज़ें देख ली थी कि दुकान वुकान और वुमेन और चिल्ड्रन के लिए ऐसा ऐसा कर सकती है स्टेट, राइट. कमिंग बैक, 15(4) talks about nothing in this article or in clause 2 or article 29 of article 29 shall prevent the state from making any special provision for advancement of any socially, educationally backward classes of citizens or for scheduled caste and scheduled tribe. तो सिंपली इसमें ये बोला है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल, सिंपली बोले तो कहना ये चाह रहा है कि जितने भी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, SC ST कम्युनिटी के लोग हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस स्टेट बना सकती है, विच ऑल्सो इज एविडेंट फ्रॉम द रिजर्वेशन पॉलिसी. एक मिनट, लिखते लिखते मैं स्पेलिंग का ध्यान देना भूल जाती हूँ, एंड हैंड राइटिंग का भी. यस, तो मतलब रिजर्वेशन पॉलिसी भी तो एक एक्सेप्शन ही है, विच बेसिकली इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल अनजस्ट. तो इसमें भी यही बोला है कि स्टेट इन पर्टिकुलर कम्युनिटीज के लिए, अगर आप बैकवर्ड हैं, आप SC ST से हैं, तो आर्टिकल 29 भी प्रोहिबिट नहीं करता, और ये आर्टिकल भी प्रोहिबिट नहीं करता स्टेट को कि स्टेट इनके लिए स्पेशल प्रोविजन नहीं बना सकती. स्टेट जो मन चाहे इनको अपलिफ्ट करने के लिए मतलब प्रोविजंस ला सकती है. दैट वाज अबाउट दिस. नाउ 5th clause. It talks about nothing in this article or in subclause G of clause 1 article 19. Clause 1 of article 19 shall prevent the state from making any special provision by law for advancement of socially and educationally backward classes of citizens
scheduled or for scheduled caste, scheduled tribes, insofar as much special provisions relate to their admission to educational institutions, including private educational institutions, whether aided or unaided by the state, other than the minority educational institutions referred in Article 13. सिंपली ये बोला है कि स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना सकती है लॉ के थ्रू सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों के लिए, SC/ST के लोगों के एडवांसमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है, और प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी एजुकेशन उनको डिनाई नहीं किया जा सकता, उनके एडमिशन को, अनटिल एंड अनलेस वो बहुत माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जिसका डिस्कशन आर्टिकल 30 में है, एंड दैट इज व्हाट आल्सो प्रेमति एजुकेशन ट्रस्ट वाज, द होल डिबेट वेंट अराउंड. इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा है. आर्टिकल 15 क्लॉज 6, so it talks about nothing in this article basically, and article 19 shall prevent the state from making. इसमें भी फिर से इसमें बेसिकली EWS पीपल के लिए बोला है कि EWS पीपल के लिए भी स्टेट कोई भी उनके एडवांसमेंट के लिए कोई भी लॉ कुछ ऐसा पॉलिसी ला सकती है. एंड फिर से यहाँ पे वही एजुकेशन, माइनॉरिटी एजुकेशन वाली स्टोरी है, विच वी विल कवर इन डिटेल जब हम लोग आर्टिकल 30 देखेंगे. तो अभी कवर करने का मतलब कि द होल थिंग विल गेट मेस्ड अप. एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड विथ आर्टिकल 16, 17 एंड 18. सो 17, 18 बहुत ईजी है, 16 भी बहुत ईजी है, बस इसको फटाफट से समझते हैं. आर्टिकल 16 बोलता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. अब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है कि अब ये है, लेट्स मेक अ डायग्राम, ये है गवर्नमेंट का ऑफिस और ये है हमारे भारत के नौजवान लोग, राइट. अब इनको चाहिए रोजगार, ठीक. अब हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि भाई तू तो लद्दाख से है, सो यू बिलोंग टू अ डिफरेंट प्लेस, so I'm discriminating you. या फिर you are particularly, let's say you are a woman, so you don't deserve this position. The state cannot do that. Or there can be other bases wherein discrimination can be made, but ऐसा नहीं हो सकता. However, there are certain limitations also which we are going to see here कि क्या क्या state कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती. तो let's zoom in and understand. There shall be equality of opportunity for all citizens. और अभी हम लोग ध्यान में देते हैं कि यहाँ पे कहाँ कहाँ citizens का रेफरेंस है और कहाँ कहाँ सिर्फ जनरल पर्सन की बात की गई है. सो अभी हमने आर्टिकल 14 देखा, इक्वालिटी बिफोर लॉ. यहाँ पे लिखा था एनी पर्सन. इट मीन्स जब हम लोग एनी पर्सन की बात कर रहे हैं, एनी पर्सन, इट मीन्स आप कहीं से भी हो. यू इवन कम फ्रॉम पाकिस्तान, यू कैन कम फ्रॉम लेट्स से यू कैन कम फ्रॉम USA, यू कैन बी फ्रॉम इंडिया, कहीं से भी हो. आर्टिकल 14 इज देयर फॉर यू मैन टू प्रोटेक्ट इक्वालिटी बिफोर लॉ. कानून के सामने आप बराबर हैं. दैट वाज आर्टिकल 14 and that was what any person meant. आर्टिकल 15 ने बोला एनी सिटीजन. अभी तो स्टेट को खुद ही नहीं पता कि सिटीजनशिप कैसे हम लोग प्रूव करें, और इवन द सिटीजन्स डोंट नो व्हाट डॉक्यूमेंट टू ब्रिंग फॉरवर्ड टू शो द स्टेट. ये नहीं, हम यहीं के नागरिक हैं. नेवरदलेस, कीपिंग दैट असाइड, एनी सिटीजन मतलब सिर्फ इंडियन सिटीजन्स की बात हो रही है. अब फिर यहाँ से ये सारे लोग हट जाएंगे, ये पाकिस्तान वाले, ये US वाले जो भी लोग हैं ये हट जाएंगे. सिर्फ इंडिया के लोगों की बात हो रही है व्हेन इट इज कमिंग विथ रेफरेंस टू आर्टिकल नंबर 15. दैट इज व्हाट आर्टिकल नंबर 15 इज टॉकिंग अबाउट. तो आर्टिकल नंबर 16 में भी ये पढ़ते हुए हमें ध्यान देना पड़ेगा कि इट इज ऑल्सो फॉर सिटीजन्स. तो इट्स मोर लाइक रटना नहीं है, बट पढ़ते पढ़ते हमें पता नहीं चलता कि किस चीज़ पे ध्यान देना है, डिफरेंस क्या है. तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड डिफरेंसेस फॉर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव इन जनरल भी. बट मैं पढ़ी थी तो मुझे याद है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेल कि पढ़ना कैसे है. हाँ, तो आर्टिकल 16 बोलता है कि देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल
citizens in matter relating to employment or appointment to any office under state. ठीक है, ये देख लिया हमने. 16(2) बोलता है कि कोई भी सिटीजन को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते. नो सिटीजन शैल, यहाँ पे भी ओनली का ध्यान देना. ओनली only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, POB and residence. तो यहाँ पे दो नए क्राइटेरिया ऐड हुए हैं. आर्टिकल 15 में रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ था. आर्टिकल 16 में 7 क्राइटेरियाज हैं कि इन 7 बेसिस के ऊपर हम लोग आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपके डिसेंट के बेसिस पे नहीं कर सकते और आपके रेजिडेंस के बेसिस पे नहीं कर सकते हम लोग. तो दिस इज व्हाट इट इज अबाउट आर्टिकल 16. 16(3) talks about nothing in this article shall prevent the parliament from making any law prescribing in regard to a class or classes of employment or appointment to an office prior to such employment or appointment under the government or any local authority within a state, any requirement as to residence within the state or union territory. Simply इसमें ध्यान में ये रखना है कि रेसिडेंस को एक प्राइमरी क्राइटेरिया बना सकती है पार्लियामेंट ऐसा किसी लॉ के थ्रू, और वो किसी सर्टेन रेसिडेंस के पर्सन के लिए ही ओपन हो सकते हैं. लेट्स से ऐसा हरियाणा के लोगों के लिए ही वो पर्टिकुलर जॉब है ऐसा करके स्टेट कर सकती है. Article 16 clause 4 talks about nothing in this article shall prevent the state from making any provision for reservation of appointment or post in favor of backward classes of citizens which in opinion of the state is not adequately represented in service of the state. So in simple terms 16(4) ही है वो जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट भी होता है, which is reservation. कि स्टेट को अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है और कुछ भी ऐसा रिप्रेजेंटेशन में मिसमैच है, स्टेट उन कम्युनिटीज़ के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है. दैट इज़ व्हाट 16(4) इज अबाउट. 4A 4B हम लोग देखते हैं फटाफट से. यहाँ पे 4A में बात की गई है, मेन थिंग इज प्रमोशन की स्टेट प्रमोशन के लिए भी रिजर्वेशन लगा सकती है. और 4B में बोला गया है कि अगर कोई वैकेंसी, लेट्स से 16(4) में रिजर्वेशन निकाला OBC कैटेगरी के लोगों के लिए, ठीक. अब ये क्या हुआ, 60 सीट्स हमने निकाली, 60 सीट्स में से 40 सीट्स फुलफिल हुई, मतलब फिल हुई, 20 सीट्स वर नॉट फिल्ड. तो कहीं ना कहीं जो इस साल का रिप्रेजेंटेशन है वो 20 सीट्स खाली थी, ऐसे ही थी. और फिर अगले साल हमने लेट्स से सेकेंड ईयर में फिर से 60 सीट्स निकाली, बट ये 20 सीट्स स्टेट फिलअप करेगी दोबारा, इन 20 सीट्स का रिजर्वेशन वापस से आएगा एंड दिस वुड बी काउंटेड डिफरेंटली फ्रॉम दिस. इन शॉर्ट यही बोला है कि ये अलग से रिजर्वेशन रहेगा और ये 20 सीट जो पिछले साल की नहीं भरी थी उनका अलग से रिजर्वेशन रहेगा. अब इसको बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म में लिखा है, तो पढ़ के अगर इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड, एल्स कीप दिस थिंग इन माइंड कि पिछले साल की अनफुलफिल्ड वैकेंसी को अलग से दिखाया जाएगा. तो यही बोलना चाह रहे हैं. 16(5) is talking about nothing in this article shall affect the operation of any law which provides the incumbent of an office in connection with affairs of any. देखिए इसमें सिंपली कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, which is religious or denominational institution or any member of governing body thereof shall be professing. देखो अब हम लोग लेट्स से यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स देते हैं. दिस इज राम मंदिर का दिस इज राम मंदिर का ट्रस्ट और मे बी एनी हिंदू टेम्पल. लेट्स से दिस इज अ मॉस्क नवाजुद्दीन का या कोई भी बहुत प्रोमिनेंट मॉस्क है, ठीक. अब यहाँ पे सिंपली इन्होंने बोला कि राम मंदिर के जो भी पुजारी लोग होंगे या फिर यहाँ पे जितने भी लोग एम्प्लॉय होंगे, लेट्स से पुजारी होंगे या जितने भी लोग पर्टिकुलरली सर्व कर रहे होंगे,
उनके पास उनके कैसे समझाऊं मैं, उनके अंदर जो भी लोग होंगे वर्क कर रहे होंगे, वो जो भी एम्प्लॉयमेंट होगा, देयर कैन बी अ रिलीजियस ग्राउंड डिटरमाइंड कि आप इस पर्टिकुलर रिलीजन से कन्फर कर रहे हो, आपकी आइडेंटिटी है वो रिलीजन, या फिर आप प्रोफेस करते हो उस रिलीजन को, ये बोलना चाह रहे हैं आर्टिकल 16 का क्लॉज 5 की office in connection with affairs of religious, denominational institution or any member of governing body thereof shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular denomination. तो similarly अगर मॉस्क की बात हो रही है तो आप उस particular religion या denomination से belong करने चाहिए. और 16 clause 6 talks about nothing in this article shall prevent the. एक टाइम पे गाइज ऐसा हो गया था कि कितना ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पढ़ा था कि कभी कभी जब मैं खुद से बात करती थी तो मेरे खुद की लैंग्वेज में भी ऐसे मैं टर्मिनोलॉजीज यूज़ करती थी, पार्लियामेंट में बाई लॉ और समथिंग बाई लॉ, या कभी मेरे सपने में भी ऐसा लगता था वही लैंग्वेज चल रही है. So that was excessive level of consumption of constitution, language of constitution, क्योंकि बहुत ज़्यादा nothing by law, ये law वो law ऐसे ऐसा करके. Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for reservation of appointment or post in favor of economically weaker sections of the citizens other than classes mentioned in clause 4. I think ये पढ़ के ही समझ में आ गया. इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं. अब दो बहुत फेमस आर्टिकल 17, आर्टिकल 18. आर्टिकल 17 सिंपली यही बोलता है कि देखो भाई, अनटचेबिलिटी का ज़माना चला गया है तो अनटचेबिलिटी अब हम नहीं करेंगे. अभी भी घरों में होता है, बहुत सारी ऐसी हिडन प्रैक्टिसेस या सटल प्रैक्टिसेस होती हैं अनटचेबिलिटी को लेके, बट by constitution it has been completely prohibited. Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence punishable according with law. ठीक है, तो ये तो समझ में ही आ गया कि क्या कहना चाह रहा है. I was having one question की, but we'll discuss that later. आर्टिकल 18 टॉक्स अबाउट अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. अब बहुत सारे लोग होते हैं ना ऐसे, बाबू भाई साहब ये वाला वो फलान ढिमकान, एंड दे यूज सर्टेन टाइटल्स. तो क्या वो टाइटल्स यूज करना कॉन्स्टिट्यूशनली जस्टिफाइज है? ठाकुर ब्राह्मण तो ठीक है, बहुत लोग कुछ अलग ही टाइटल लेके चलते हैं ऐसा, जो बहुत ज़्यादा इलीट या एरिस्टोक्रेटिक होता है कभी कभी. सो आर्टिकल 18 टॉक्स अबाउट नो टाइटल एक्सेप्ट अगर आपका मिलिट्री या कोई एकेडमिक डिस्टिंक्शन है. लेट्स से आप मिलिट्री में आप आपको कोई अवार्ड मिला है, पर आप वीर चक्र या मिलिट्री के आप किसी सर्टेन पोजीशन पे हैं, या फिर कोई एकेडमिक डिस्टिंक्शन है, या फिर भारत रत्न एक्सेट्रा से आप अवार्डेड हैं. इन सब चीज़ों के अलावा एकेडमिक डिस्टिंक्शन का टाइटल लाइक डॉक्टरेट वाला टाइटल, इन सब के अलावा आप कोई भी टाइटल स्टेट कन्फर्म नहीं करेगी. कोई भी इंडियन सिटीजन कोई भी टाइटल किसी भी फॉरेन स्टेट से एक्सेप्ट नहीं करेगा. और नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया shall, while he holds any office of profit or trust under the state, except without the consent of president, any. सिंपली इसमें ये बोला है कि अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं हैं बट यू आर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर इंडियन गवर्नमेंट, तो आपको अगर कोई टाइटल कन्फर किया जा रहा है किसी फॉरेन स्टेट से, यू विल हैव टू आस्क इंडियन गवर्नमेंट, प्रिसाइजली द प्रेसिडेंट, उस टाइटल को एक्सेप्ट करने से पहले. लास्ट आर्टिकल 18(4) टॉक्स अबाउट नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शैल विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट. तो ये इन जनरल बोला कि नो पर्सन, यहाँ पे एक सिटीजन का जो सिटीजन नहीं है उनके लिए, यहाँ पे कोई भी पर्सन अगर कोई भी स्टेट के अंडर में ऑफिस होल्ड कर रहा है और किसी फॉरेन स्टेट से या किसी भी तरह का अच्छा सिंपली यहाँ पे ये बोला कि प्रेसिडेंट के कंसेंट के बिना कोई भी प्रेजेंट मॉन्यूमेंट ऑफिस ऑफ एनी काइंड किसी भी फॉरेन स्टेट से एक्सेप्ट नहीं कर सकते.
तो दिस इज व्हाट इट इज गाइस। पूरा काफी लंबा था ये वीडियो एंड इट इज मेंट टू बी अ लॉन्ग वीडियो, क्योंकि इनको हम लोग शॉर्ट में कवर करने का मतलब कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग से, which is not justifiable to the constitution, which is not justifiable to me myself. एक बारी अगर हम चाहे तो मेंटल रिवीजन करते हैं। लेट्स डू प्ले अ शॉर्ट क्विक गेम, उसके बाद विल एंड दिस वीडियो एंड वी विल मीट इन अनदर वीडियो जहाँ पे हम लोग राइट टू फ्रीडम की बात करेंगे। तो अभी हम एक मेंटल रिवीजन करते हैं, या फिर जिसको कहते हैं ना ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। सो लेट्स रिवाइज। अभी के अभी रिवाइज करते हैं, जहाँ पे भी गैप्स आपको फील होंगे यू विल गो एंड री रिवाइज। तो हमने क्या देखा, आर्टिकल 14 देखा। आर्टिकल 14 में क्या बोला गया, इक्वालिटी बिफोर लॉ, की स्टेट शैल यू नो कीप एवरीवन इक्वल, एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। वो जो डायलॉग होती है, कानून के सामने सब बराबर होते हैं, कानून अंधा होता है, वो सारे डायलॉग्स यहाँ पे यूटिलाइज कर देना। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात थी कि this was for all person. I don't know if you are getting any background noise, because there is one person who every time, every day this time shouts hey Mahadev. So वो काफी ज्यादा तेज चिल्लाते हैं, पता नहीं क्यों, तो मुझे काफी अजीब फील होता है। And if you are getting that voice, something like that, it's him. So kindly ignore that. But लेट्स रिवाइज आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 15 में हमने मोटा मोटा क्या देखा था, इट वॉज रिलेटेड टू डिस्क्रिमिनेशन। इसके अंदर भी 4 से लेके 6 कुछ ऐसे क्लॉजेस थे, और डिस्क्रिमिनेशन में भी कौन से ग्राउंड्स थे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। और ये एक्सप्लिसिटली किन लोगों के लिए था, इंडियन सिटीजन्स के लिए था, विच इज नॉट येट क्लियर नाउ कि कैसे बताएं हम इंडियन सिटीजन्स है। आर्टिकल 16 क्या बोलता है, आर्टिकल 16 बोलता है एम्प्लॉयमेंट, दिस इज गवर्नमेंट ऑफिस, लेट्स से दिस इज गवर्नमेंट ऑफिस। अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज के लिए बात एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड है, और यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा कैटेगरीज ऐड हुई थी, डिसेंट और रेजिडेंट्स। और इसके अंदर में फिर वही कहानी थी कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों के लिए बना सकते हैं, EWS के लिए बना सकते हैं, और रेजिडेंट्स को कभी हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, और ऐसा ऐसा करके कुछ पॉइंटर्स थे जो हमें ध्यान में रखने हैं। और ये भी किसके लिए था, सिटीजन्स के लिए था। 17, अच्छा 17 किसके लिए था ये देखते हैं। वॉज 17 ओनली टू सिटीजन्स अनटचेबिलिटी, या फिर इट वॉज फॉर ऑल। तो ये हो गया 17। चेक क्या करना है हमें, 17 था किन के लिए। तो वी आर एट 17। तो यहाँ पे कोई भी एज सच लिखा नहीं गया है कि इट इज स्पेसिफिकली फॉर सिटीजन, तो अज्यूमिंग दैट इट इज फॉर ऑल, तो 17 is for all persons। कहाँ गया स्क्रीन, this is what happened when someone who is not very tech savvy। और 17 देख लिया हमने, it was with regard to untouchability, कोई मूवी भी थी इसके ऊपर, एंड अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया। हाँ, ये चीज मुझे समझनी थी कि अनटचेबिलिटी डिफाइन ही नहीं की गई कि किस फॉर्म की अनटचेबिलिटी को आप लोग अनटचेबिलिटी कंसिडर करेंगे, क्योंकि इंडिया इतना वास्ट है, इतनी अलग अलग तरह से अनटचेबिलिटी स्टिल प्रैक्टिस किया जाता है, बहुत अलग अलग फॉर्म्स में उसका एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है। तो किस फॉर्म की अनटचेबिलिटी को आप लोग अनटचेबिलिटी मानते हैं और किसको नहीं मानते। एंड देयर हैज बीन सर्टेन एक्ट्स आल्सो, प्रिवेंशन ऑफ एरिस्टोक्रेसीज एक्ट 1988 का। और अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस भी था जहाँ पे जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज है उनके साथ ऐसी प्रैक्टिसेस हुई थी अनटचेबिलिटी, एंड ही बिलोंग टू दलित कम्युनिटी, कुछ ऐसे हिंदी में बोलते अपराजक तत्व ऐसे कुछ करके, आई मीन unexpected, yet treating him on the basis of his caste,
जहाँ पे I do not want to exactly mention what happened to him because it was not justifiable even though, बट या यू कैन रीड। और बहुत सारे केसेस पिछले साल आए थे जहाँ पे एक आईपीएस ऑफिसर का केस देखने को मिला था, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ ऐसी चीजें हुई तो वो भी देखने को मिली थी, विच कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट्स दैट हाउ untouchability is still embedded into Indian society, into its practice, and how people still consider, the other person, even if they hold power, positions of power, of respect, they are still viewed with the reference of their caste. और अनटचेबिलिटी में ये भी तो होता है बहुत सारी जगह वुमेन्स को एलिनेट कर देते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देयर मेंस्ट्रुएशन, सो क्या वो भी एक अनटचेबिलिटी का फॉर्म है? दिस इज समथिंग विच आई एम वंडरिंग ऑफ, बट नेवरदलेस टॉपिक पे आते हैं। और आर्टिकल 18 जहाँ पे सिंपली बोला गया कि किसी भी तरह का टाइटल, महाराजा वाला टाइटल, कुछ भी आप टाइटल ऐसे लेके नहीं चलेंगे एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन। उसके अंदर फर्दर था कि फॉरेन स्टेट से एक्सेप्ट करना है, ये वो करना है, ये बहुत इजी था। तो मिलिट्री और प्लस एकेडमिक डिस्टिंक्शन के अलावा आप कोई भी टाइटल ऐसा नहीं कर सकते। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट वीडियो प्रोबेबली अभी तक का, और मैंने ये ब्लैक थीम यूज किया क्योंकि मुझे लगा कि ब्लैक थीम से थोड़ा अच्छा लगेगा पढ़ाने में भी और चीजें ज्यादा खुल के निखर के आएंगे सामने। सो दिस इज अबाउट राइट टू इक्वालिटी पीपल। आई वांट you people to understand everything, so I covered things particularly in detail और depth की कोई limit नहीं है, because this video of 41 minutes can also extend to 3 hours as well, but that does not help you into making you study by your own self and developing your understanding. So my work is to assist you into developing that sort of interest, understanding towards your study and facilitate it rather than to spoon feed you everything कि इसके अंदर भी ये चीज़ है and teach you everything line by line। मैं लक्ष्मीकांत भी पढ़ाने बैठू and everything। आई एम टीचिंग यू द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने भी पहली बारी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था अच्छे से, एंड देन आई वेंट ऑन टू लक्ष्मीकांत। एंड फिर उनको जब आप वापस बैक एंड फोर्थ करते हैं, लक्ष्मीकांत फिर कॉन्स्टिट्यूशन लक्ष्मीकांत ऐसे करके, यू विल फाइंड थिंग्स मेकिंग मोर सेंस फॉर योर प्री, फॉर योर मेन्स एंड इन जनरल विथ न्यूज ऑल्सो। दैट इज इट अबाउट दिस वीडियो। काफ़ी लंबी वीडियो थी, बट आई होप दैट वुड be helpful to you all in the long run, and with the hope to come with the next video. I am ending this video, so I will see you people soon in the next video. ये मैं हमेशा ही हर वीडियो में ही कहती हूँ, and till the time, have fun, read constitution, stay hydrated, enjoy life, and yeah, that's it with regard to my extra gyan. And so yeah, ending this session.